इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। भाइयों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और चौगरदे का तिरंगा अभियान, मेरी माटी मेरा देश, बहुत अच्छे अभियान चल रही है जो देश को आगे बढ़ा रही है। एकता हमें हर जगह मिल रही है और साथियों एकता होनी भी चाहिए। और आज कार्यक्रम किसान वाणी में भी साथियों बहुत कुछ हम लेकर आए हैं और हमेशा लेकर आते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो रूपरेखा थोड़ी सी वह भी बता देते। आज जो हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा लेकर आए साथियों, नई बहुत अच्छा विषय लेकर आए, कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ साथियों आज की नसीहत में हम बात करेंगे मुर्गी घरों की देखभाल व प्रबंध के बारे में। और साथियों जिस तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम कृषि पर्सन से करते हैं, तो आज का जो कृषि पर्सन के बारे में बता देते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? भाई वो कौन सा ज़िला है ज़रूर बताइए। और हम जानते हैं भाई अपना अच्छी तरह बेरा है, तो बिना किसी देरी के 94 660 21 336 पर आप केवल SMS के माध्यम से हमारे को 6:50 तक आप इसका उत्तर दीजिए। नंबर एक बार फिर से 9466021336। और साथियों आपके प्रश्न का इंतज़ार रहेगा, इसका उत्तर हम ज़रूर बताएंगे और केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को इसका उत्तर दीजिए। और अब एक संदेश, और संदेश के बाद हम जो चर्चा करेंगे कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग। सुनते हैं ये संदेश। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible.
our youngsters are innovating farm technologies. Our agri startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। तो साथियों, ये तो आपने संदेश सुना, और संदेश से पहले हमने एक प्रश्न भी आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर आप 94,660,21,336 पर आप ज़रूर 6:50 तक दीजिए। आप सभी के नाम बताए जाएंगे जो इसका सही उत्तर देगा। और अब बात हम कर लेते हैं साथियों कार्यक्रम किसानवाणी में कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग के बारे में। और देखो साथियों, आज जो बदलता स्वरूप है और 21वीं सदी की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहले जड़ा हम बड़दाता भाई कृषि करा करते, फिर ट्रैक्टर आ गए और फिर नई नई मशीन आ गई। और आज यदि देखा तो भाई कति चाड़ा पाट रहा है। जड़ा हम ब्याह शादियाँ में जो ड्रोन देखा है कई बार भाई हमारी फ़ोटो सारे डाल के ले लेते हैं। और आज इसी तरह जो ड्रोन है साथियों, जो कृषि के अंदर एक आधुनिक उपकरण मत एक से। और साथियों, आज कृषि का भी जो स्वरूप वो बदल गया है। और भाई जो ड्रोन की जब हम बात करते तो यो एक मानव रहित विमान होया करे, या नूका हुआ कि भाई एक उड़ने वाला जो रोबोट है, इस तरह दूर से ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम नियंत्रण करते हैं। और दरअसल भाई इसमें एक जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम और अनेक सेंसर होते हैं। नेविगेशन यानी कि कितने भी इसना मोड्स का है तो ये दिशा दिखा देता है। और अलग अलग सेंसर है जो ये बैटरी की सहायता तक काम करता है। और इसमें कई तरीके के उपकरण, जिस तरह कैमरा होगा, कीटनाशक छिड़काव यंत्र भी इसमें लगे होते हैं। जो मल्टी रोटर ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन व सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन आदि इसकी कृषि ड्रोन किसानों द्वारा हम प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें जो ड्रोन के प्रयोग में खेती में होने वाले लाभों की जब हम बात करते हैं, देखो एक तो इसमें बीजों के रोपण में सहायक है, क्योंकि साथियों जो कृषि ड्रोन्स है वो सेंसर तकनीक और इंटेलिजेंट सिस्टम द्वारा बंजर भूमि या फिर बड़े क्षेत्र में कम समय में बीजारोपण इसमें कर सकते हैं। और रोपण प्रणाली से लेंस ड्रोन सीधे मिट्टी में बीज को लगा सकते हैं। कुछ ड्रोन एक दिन में लगभग 1 लाख तक भाई बीज इसमें बो देते हैं। और कीटनाशक व उर्वरकों का कम समय में छिड़काव की अगर जो बात करें तो भाई ड्रोन जो है ट्रैक्टर या अन्य साधनों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ खेतों की जो जांच करता है और फसलों में सही मात्रा में कीटनाशक और उर्वरकों का जो तेजी से छिड़काव भी इसमें कर सकता है, जिस तरह जमीन की शुद्धता भी बनी रहती है और रसायनों के अधिक जो प्रयोग पर भी रोक लगती है। तो ड्रोन मुश्किल तय भाई 15-20 मिनट में लगभग इसमें 1 हेक्टेयर भूमि में कीटनाशकों का या फिर उर्वरक का जो छिड़काव उसमें कर देता है। और सामान्यतः रूप तो भाई छिड़काव इसमें किया जाए तो इसके 2-3 जो मजदूरों की आवश्यकता होती थी, जिसका खर्च भाई बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जबकि ड्रोन से छिड़काव में भाई तकरीबन लगभग 501 रुपये इसमें खर्च आ जाता है। और जरा 15
100-2,000 रुपये लगा करते हैं, उसमें भाई आधे तभी आधे इसमें खर्च आ जाता है। तो कुल मिलाकर जो तकनीक है, तकनीक से भाई पीछे भी बच्चे हैं। और व्यापक जो सिंचाई और मिट्टी की जांच भाई ड्रोन में लगे हाइपर स्पेक्ट्रल थर्मल या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क होते हैं या जिनमें जल भराव की समस्या होती है। तो इस माध्यम तभी ड्रोन के द्वारा जो सिंचाई की सही योजना इसमें हम बना सकते हैं। तो भाई इस व्यापक सिंचाई योजना के साथ साथ जो हमारा जो ड्रोन की जब हम बात करें तो इस तरह फसल की गुणवत्ता निगरानी, भाई मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी इस तरह हमने प्राप्त हुआ है। और भाई फसल की जो उचित जानकारी होने पर भी संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से बिना फिजूल खर्ची के इस तरह संभव है। तो भूमि प्रदूषण कम करने में भी यो सहायक है, क्योंकि जो किसान ड्रोन से जो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में भाई ज़्यादा क्षेत्रफल की भूमि की जो प्रभावी ढंग से देख रेख कर सकता है और इसमें उचित मात्रा में जो जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से भी भूमि को सुरक्षित रख सकता है, जिससे भूमि प्रदूषण भी इसमें कम होता है। और फसलों के नुकसान के सही आकलन की जब हम बात करते हैं तो इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर और RGB सेंसर जो तकनीक वाला जो कृषि ड्रोन्स है वो किसान बीमा दावों के लिए फसलों के नुकसान का सही आकलन कर सकता है। तो इसका जो फ़ायदा है वो फसल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जो बीमा का दावा करने में उपयोगी हो सकता है। और भाई नूते देखो जो किसान ड्रोन नुकसान का आकलन कर सबूत भी इकट्ठा कर सके है और बीमा कंपनी के पास भी नुकसान की भरपाई का दावा मजबूती के साथ रख सकता है। तो ड्रोन तक जो हमने इसमें प्राप्त जो GPS से आधारित सही और भरोसेमंद जानकारी को जुटलाना भाई किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि भाई देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो चीज़ इसमें सारी दिख जाती है। और संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग की जब हम बात करते हैं तो कृषि ड्रोन है किसानों को विभिन्न संसाधनों के बीज की है, पानी की है, उर्वरक की बात कर लेते हैं या जो कीटनाशक के अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो एक खेत के सभी क्षेत्रों को एक जैसा उपचार देने के बजाय भाई जरूरत के अनुसार उपचार देने से उपलब्ध संसाधनों का भी अधिकतम उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। और तीव्रता से भाई खेत का जो मुआयना भी इसमें करके समयाग्रस्त क्षेत्र में जिस तरह भाई संक्रमित फसलों की बात कर ले या फिर अस्वस्थ फसलों की मिट्टी में नमी के स्तर की जांच की इसमें कर सके हैं, जिस तरह समय रहते खेती में ज़रूरत के अनुसार इसमें हम काम कर सके हैं। लेकिन भाई ड्रोन में ये भी ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए, इसकी कुछ शर्तें भी हमने ध्यान रखना चाहिए इसके प्रयोग में, क्योंकि किसानों को ड्रोन का इस्तेमाल करते टाइम अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। जिस तरह भाई हाई टेंशन जो लाइन्स है या फिर मोबाइल टावर वाले जो स्थानों पर अनुमति लेनी इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रीन जोन के क्षेत्र में ड्रोन द्वारा दवाई का जो छिड़काव नहीं कर सकते, खराब मौसम या फिर तेज़ हवा में भाई ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। और आवासीय क्षेत्रों के पास भाई खेती पर होने पर अनुमति इसमें लेना बहुत ज़रूरी है, इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भाई सरकार द्वारा भाई प्रोत्साहन तय इसमें चल ही रहा है, क्योंकि भाई जो बजट भी है उसके अंदर भी इसका जिक्र है। और फसल का जो मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषण तत्वों के छिड़काव के लिए भी किसान ड्रोन के उपयोग को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथियों इसके अलावा जो ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें देखो जो फिलहाल देश के अंदर भाई इसकी प्रगति तो बढ़ ही रही है। और भाई राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान तक खेती के लिए भाई ड्रोन का प्रयोग करने लगे और अगले आने वाले समय में भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई अन्य राज्यों के भी भाई इसमें ड्रोन से खेती करेंगे। तो भाई ये जो निश्चित तौर पर भाई बहुत बढ़िया है। और कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग से भाई जो हमारी जो कृषि है वह भाई और आगे जल्दी से विकास के दौर पर आगे बढ़ेगी। तो साथियों हमने ज़रूर इन चीज़ों का तकनीक के साथ चलना चाहिए। नुका अगर भाई जमाने की गिला चल लगे तो भाई इसमें फ़ायदा रहेगा। तो आज जो तकनीक है जो सरकार पूरा हंगा लगा रही है, केंद्र सरकार की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की या नए सरकार की बात करते हैं, तो साथियों इसमें किसानों को हमेशा
आर्थिक तौर पर मजबूती उनकी बनी रहे, तो ऐसे विकास योजनाएं लेकर आ रही है और सब्सिडी भी दे रही है, तो हमने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो साथियों, यह तो बात करी हमने कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में बात करी थी, और अब थोड़ी सी मौसम की ज़रूर बात कर लेते हैं। साथियों, आज का कुरुक्षेत्र के आसपास का जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री, और जो न्यूनतम की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले जो 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जड़े तक भाई बादल छाए रहेंगे, और 2 दिन तक तो भाई इंद्र देवता थोड़े ठंडे हैं, और उसके बाद बारिश की संभावना हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 24 घंटे में भाई मौसम ठीक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं भाई आने वाले कृषि कार्यक्रम की। और साथियों, आज तो शनिवार है, कल रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते थारी चिट्ठी मारे गीत, और उसके बाद जो सोमवार को हमारा जो किसानवाणी कार्यक्रम होगा उसमें हम जो चर्चा का विषय लेकर आए भाई कृषि का बदलता स्वरूप, डिजिटल कृषि की बात करेंगे, और नई फसल नई उमंग में आप बात करेंगे मिर्च की फसल में पौध संरक्षण किस तरह करें, तो और साथ के साथ प्राकृतिक खेती की भी और अन्य बढ़िया बातचीत जारी रहेगी। और तो साथियों, कार्यक्रम ज़रूर सुनिए। और अब जो समय हो गया साथियों मनोरंजन का हो गया है, और मनोरंजन के बाद हम जो अन्य चर्चा करेंगे आज की नसीहत में। सुनते हैं ये लोकगीत। तो भाई बात कहाँ से कि एक बार हरियाणा में कुछ न कुछ बावड़ बेडा आ गया, और एक बात के दोबारा उन्हें एक भजन में क्या बताया भला, ये रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना, यो के सुनना चाहे से, इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से, अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से, अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। एरे कोई कहे से और कोई कहे से लक्ष्मी चन के वो गीत पुराने गा दे, और कोई कहे से बादी आली वो फिल्मी तरज सुना दे, और कोई कहे से 9 2 11 17 18 गा दे, कोई कहे से है नौटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे, कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता, कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता, यो तवर थाए मुंह बावे से, दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से, भाई अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का रंग ढंग देख
कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा भाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता ये रे झूठे तोड़ बेड़ावे से दुनिया का देख मन अचरज सा आवे से अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से मदनावत का वो तैये वेद बताना वो कोई कहे से पता हीर ने तू क्या कर ले क्या खाना कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना ओ कोई कहे से यो रोट पाड़ से कोई कहे से रोट पाड़ से यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे से आज रात ने वो रात काट के धरी दे अरे कोई कहे से आज रात खड़ी वो देवी माई करी दे अरे कोई कहे से बड़े देवी का संग सरूत करी दे ये जाट में हिर संग वो गावड़िया किसे किसे का पेट भरी दे हो लगा दिया भाई एक उतयान के यूं बोलिया रे उतयान के यूं बोलिया तू के घंटा गावे से दुनिया का देख तेरे अचरज सा आवे से अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से दुनिया का ढंग देख मन अचरज सा आवे से तो साथियों ये तो हमने आपको रागनी सुनाई राजेंद्र खरकिया और साथ गायक कलाकार साथियों द्वारा थी और मेर सिंह की हिट रागनियों से हमने इसको लिया था। वास्तव में अपनी अपनी पसंद तो होती है और भाई पसंद आपकी भी
जो है वो उसका ज़रूर जिक्र करेंगे। और कार्यक्रम के शुरुआत में हमने जो प्रश्न करा था आज का कृषि प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, और इसका जो उत्तर भाई हिसार है, और जो सही उत्तर दिया है और भाई इसमें जो गांव कुरुक्षेत्र से है, गांव भटेड़ी से, और जिनका नाम है रमेश गुर्जर। और नूतव साथियों नांगल इंद्रजीत जज्जर से ईश्वर दयाल ने भी कंपोज ने कोशिश करी, लेकिन भाई रमेश गुर्जर है जो गांव भटेड़ी से कुरुक्षेत्र से, उन्होंने इनका सही उत्तर दिया है। और साथियों अब आगे की कार्रवाई ज़रूर करते हैं, और अगला जो हमारी जो विषय है उसको भी ज़रूर हम ले लेते हैं। और बात हमने एक मुर्गी पालन की करी थी आज की नसीहत में, क्योंकि देखिए जो मुर्गी घरों की जो देखभाल और प्रबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मुर्गी वंश अच्छा होने के बावजूद भी अगर जो प्रबंधन ठीक न किया गया हो तो पक्षियों से अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलता। और कुशल व्यवस्था और सावधानी अपनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन ले सके हैं, और इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जो चूज़ों की जो सावधानी और प्रबंध का हमने ध्यान रखना चाहिए। चूज़ों के प्रबंध को ब्रूडिंग प्रबंध भी हम कहते हैं। तो लेयर पक्षियों के चूजे 7 से 8 सप्ताह ब्रूडर हाउस में रखे जाते हैं और बाद में ग्रोवर हाउस में स्थानांतरित इसमें कर देते हैं। किंतु जो ब्रॉयर में 3 हफ्ते तक का ब्रूडिंग और बाद में क्रोइंग उसी घर में की जाती है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो वातावरण की जब हम बात करते हैं, वातावरण इसमें बढ़िया रखना चाहिए। और इसमें भाई हवा का जो अधिकतम गीलेपन से आर्द्रता नमोनिया वायु की मात्रा बढ़ती है, तो जिससे आँखों की जलन और सांसों के रोग बढ़ते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और स्वास्थ्य संबंधित इसका भाई निरंतर जांच करवाते रहे। और बिछावन का तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो डीप लीटर रीति के लिए ये बहुत महत्व रखता है। और चावल या लकड़ी का जो भूसा है उसमें मूंगफली के छिलके जिस तरह पदार्थ लीटर के लिए इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और जो ब्रूडर के भीतर की जगह की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक चूजे को ब्रूडर के भीतर लगभग 50 से 66 चौड़ाई सेंटीमीटर जगह की सिफारिश में की गई है, तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और जो चूजे रक्षक है उसमें चूजे गर्मी के स्रोत से दूर जाकर न मरे, इसलिए ब्रूडर के आजू बाजू में करीबन 45 सेंटीमीटर ऊंचाई की जो गोल पटड़ी लगा देवे, जिस तरह चूजे सुरक्षित इसमें रहे। और तापमान की व्यवस्था इसमें ज़रूर करनी चाहिए। 6 से 7-9 सेंटीमीटर अंदर और लीटर तल से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तापमान इसमें ठीक रहता है। और इसी तरह जो खुराक का भी ध्यान रखें, उजाले का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और टीकाकरण और चोज काटने के जो वो भी भाई डॉक्टरों से नियमित इसमें हमने जांच इसमें करानी चाहिए। और इसी तरह एक मोटे अनाज की भी हम बात ज़रूर कर लेते भाई। मोटा अनाज जिस प्रकार से हम 75वें सत्र में भाई जिस तरह हम मना रहे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज इसमें हम मना रहे, तो इसके भारतीय प्रस्ताव को खाद्य और कृषि संगठन के चलन मंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो पूरा विश्व मोटे अनाज के तर्ज पर चल रहा है, तो हमने मोटे अनाज की तरफ भी ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए। और एक जानकारी महत्वपूर्ण ज़रूर दे देते हैं साथियों, किसान कॉल सेंटर नंबर है 1551। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप इस नंबर पर किसी भी समय ले सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों जो हमने ये जो आज बातचीत करें, एक उम्मीद करते हैं कि साथियों कार्यक्रम किसान वाणी में आपको ज़रूर इस अंक में पसंद आई। और निरंतर कार्यक्रम किसान वाणी सुनते रहिए ताकि हम अपडेट हर क्षेत्र में रहे। तो आज के कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसी अंक के साथ साथियों अपने भाई धर्मे को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।